Good afternoon, guys. So this is a one-on-one session with our Chiku Charts premium member Shivam. He took our currency trading workshop a month ago, and today we are here. We will discuss about some of the doubts that Shivam has, and we will be knowing about his trading journey. So, hello Shivam, how are you? Hi Anurag, I'm doing good. So I'll tell you a little bit about my journey. So I Okay, started trading a year and a half ago, okay, and like I just started with the equity, and I was trading in the equity segment for like around 7 to 8 months. After that, I was a bit profitable in that, but then I discovered options, and like I did not know much about it, and I started trading in options then without much knowledge in it. So okay, I lost a little bit of capital in that. So then I took a break. And last month, as we know, like it was a very volatile market. So I had a little bit of bad journey in that. So I lost around 20K in options, like in just two okay, expiries. okay, So I just wanted to like improve my psychology. And like 2 weeks ago, I also attended the Chiku Charts ka currency trading workshop. I just okay, wanted to know ki how to be a multi-asset trader, and like I read the blog okay, okay. on the Chiku Charts page. So I was like, this is something maybe I can do since the market isn't that volatile as our stock market. So that's been a profitable journey till now. So I'll be increasing my capital in that. But I would also like to improve my consistency in the equity and options. ओके ओके ग्रेट. तो आप इस वाले ब्लॉग की बात कर रहे थे अभी इस वाले की. हाँ, yes. ओके फाइन. सो आपने पहले ये ब्लॉग रीड किया एंड देन यू थॉट कि मुझे एक मल्टी एसेट ट्रेडर बनना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते. वोलेटिलिटी बहुत रहती है एंड गैप अप्स एंड गैप डाउन्स के बाद अगर आप कुछ ट्रेड्स फोर्स करोगे तो लॉसेज होंगे. ठीक है. So it happens. So you decided कि you should learn about currency as well, and you should become a multi-asset trader instead of just trading stock markets, right? Yes. ठीक है. तो I hope that everyone listened carefully about his journey. शिवम ने कुछ लॉसेस किए ऑप्शंस में एंड उसके बाद शिवम आपने बताया कि आपने बीच में एक बार ब्रेक भी लिया था. तो व्हाट मेड यू टेक दैट ब्रेक? मतलब क्या होता है कि लोग तो कंटिन्यूअसली ट्रेड करते जाते हैं, मतलब लॉसेस हो रहे हैं उसके बाद भी लोग ट्रेड करते जाते हैं, दे डू नॉट स्टॉप अंटिल दे आर एबल टू रिकवर, और या फिर उनकी कैपिटल जीरो हो जाती है. तो मतलब लोग तो ट्रेड करते जाते हैं, या तो कैपिटल जीरो हो जाएगी या फिर वो रिकवर कर लेंगे, तो तब जाके एक पॉज आता है. बट हाउ यू डिसाइडेड कि अब मुझे एक बार ब्रेक ले लेना चाहिए? Actually, I had a series of losses in between. So I started doubting my strategies. I mean, is it strategy or is it my conviction, or I'm not able to hold the trades? Because कुछ losses के बाद ऐसा होता था कि जो trades right भी जा रहे हैं बाद में, I wasn't able to hold on to them. तो जो ओके losses वाले होते थे, I was like trying to hold on to them. I was shifting my sell a lot. And जो winning trades होते थे, I wasn't able to hold them. Like अगर 10 points का target है तो like I was getting out in 3 to 4 points only. ओके. तो सबसे एक चीज जो आप फेस कर रहे हो वो ये है कि विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना मुश्किल रहता है, और लूजिंग ट्रेड्स में होल्ड करके अपन मतलब एक ठीक ठाक लॉस कर लेते हैं. तो कभी भी मतलब रेशियो देखे तो वो बैठ नहीं पाता प्रॉफिट्स और लॉसेस के बीच हाँ, and I was even maintaining the journal. में. तो ओके it's like अगर week अच्छा जाता था तो I was very happy कि I was able to make good profits. But the next week loss हो जाता था, तो 2 week का eventually वो break even पे आ जाता था. तो ओके. no, by not maintaining a journal, I wasn't able to track कि गलती कहाँ हो रही थी. Yes, yes. So one of the very important things in trading journey is to maintain a trading journal. Actually क्या होता है कि आई नो कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना तो बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप जब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो ना, तो आप प्रॉफिट वाले वीक्स पे तो खुश होके अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हो, बट कभी कभार लॉसेस होते हैं तो देन पीपल स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि यार इस वीक लॉस हो गया, अब जब वापस से एक बार स्टार्ट करूंगा अच्छे से तब करूंगा मेंटेन, वरना यहाँ पे छोड़ देता हूँ.
है ना। तो आई हाँ जस्ट वांट टू आस्क कि वो मोटिवेशन कैसे रखे लोग कि यार मेंटेन तो करना ही है, मतलब आपने जैसे मेंटेन किया तो आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि भाई यू हैव टू कीप ऑन मेंटेनिंग इवन आफ्टर मेकिंग अ लॉस या प्रॉफिट, कुछ भी हो आपको मेंटेन तो करना ही है। यहाँ पे आप, uh, हाँ। हाँ तो लाइक इक्विटी में आई वाज एबल टू मेंटेन, बट देन एफएनओ में इट वाज लाइक आई वाज ट्रेडिंग इनकंसिस्टेंटली, मतलब आज कर लिया तो 3-4 दिन बाद होता था, आई वाज लाइक हम्म। इसका जर्नल मेंटेन करके क्या ही करूंगा, एंड मोस्ट ऑफ द लॉसेस वर इन ऑप्शंस ओनली। तो ओके। लाइक आई यूज्ड टू ट्रेड ऑन एक्सपायरीज, तो जो लास्ट मंथ के 2 थर्सडेज थे, द मार्केट हम्म। गेव अ गुड क्लोजिंग, बट आफ्टर हम्म। दैट काफी बड़ा गैप डाउन हो गया था। So I faced huge losses in that, and I wasn't able to manage the risk because हम्म। I traded with multiple lots. ओके। So that thing happened, and I started with currency also. So in that, I'm able to maintain a journal. फाइन। So like I'm not doing an Excel sheet kind of journal. It's just like book mein. So I ठीक है। mean, like if I write in book, so it becomes easy for me to read it and track it down. ओके। तो आप ये भी एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर किसी को जर्नल मेंटेन करने में प्रॉब्लम है तो आप ये एडवाइस देंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एक्सेल शीट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन अ डायरी एंड उसको चेक कर सकते हाँ, क्योंकि डायरी में वी कैन राइट रीजंस आल्सो, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फील लेजी कि इतना कौन टाइप करता बैठेगा। हो। इफ वी ठीक है। जस्ट हैव बुक एंड पेन, तो वी कैन राइट की एंट्री क्यों ली थी, कब ली थी, एंड एग्जिट हम्म। कब किया, एंड व्हाट वाज द हम्म। रीजन। तो दैट हेल्प्स। राइट राइट राइट, ऐसा होता है। देखो दो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जो पीसी पे आराम से मेंटेन करने में कंफर्टेबल रहते हैं, दे थिंक कि राइटिंग इज अ बिट टफ टास्क, तो वो उसी में मेंटेन कर लेते हैं एक्सेल शीट में। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो लिखना पसंद करते हैं डायरी। तो यहाँ पे मैं भी आपके साथ हूँ, बिकॉज मैं भी जब भी कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूँ तो वो डायरी में पेन से लिख के करना पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एक्सेल शीट। ठीक है। तो ऐसा भी अच्छा होता है, वो भी अच्छा होता है, बट दी कंक्लूजन इज कि आपको मेंटेन रखना चाहिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप ज्यादा बेटर कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आपके पास एक स्कोप रहेगा। राइट। ठीक है। हाँ तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द डाउट्स। आप क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, वॉट एवर डाउट्स यू आर फेसिंग इन द मार्केट रिगार्डिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट एंड एनी अदर थिंग। तो पहला तो आई वुड लाइक टू आस्क कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ प्रीवियस लॉसेस, क्योंकि लाइक मेरे साथ क्या होता है कि अगर लॉस हो जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट ट्रेड के लिए कम हो जाता है, तो आई एम बिट हेजिटेंट कि ये लूं कि नहीं। इवन इफ इट गोज राइट देन आई एम लाइक फोमो होता, अगर रॉन्ग जाता है तो देन आई एम लाइक हैप्पी कि अच्छा हुआ नहीं लिया। समझ गए। देखिए क्या होता है कि वेन एवर वी आर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग जर्नी एंड अपन को कुछ टाइम हुआ होता है तो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें से एक होती है लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है। क्या होता है कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि इन अ टफ मार्केट यू हैव सम लूजिंग स्ट्रीक, और लूजिंग स्ट्रीक में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता होगा आपकी स्ट्रैटेजी पे। तो उस समय आप क्या प्रेशर फेस करते हो जब भी आपके पास एक लूजिंग स्ट्रीक होती है ना, यू स्टार्ट गोइंग इन एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कंफ्यूजन आ जाता है कि यार मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ क्या वो सही है या वो गलत है। तो उस चक्कर में क्या होता है आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हो। ठीक है। यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज ये होती है बिगनर्स के साथ कि वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखने लग जाते हैं ऑन द इंटरनेट। तो गूगल पे वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक्स बिकम कि क्या राइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिससे हमें वो होली ग्रेल मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग। ठीक है। एक चीज आपने पढ़ी होगी, एनालिसिस पैरालिसिस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आप इतना ज्यादा पढ़ लेते हो, इतना ज्यादा एनालाइज कर लेते हो मार्केट्स को कि आप कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाते। राइट। बिकॉज आप कभी कोई ट्रेड लेने जाते हो तो आपको लगता है नहीं यहाँ पे ये चीज मैच नहीं करी तो अवॉइड कर देते हैं। फिर अगर आप दूसरी साइड की ट्रेड लेने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ और दिख जाता है, देन यू थिंक कि नहीं यार यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है तो इसको भी अवॉइड कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। यहाँ पे आपको एक फियर रहता है दोनों साइड पे, आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाते। यू आर जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट एंड यू आर जस्ट लीविंग, आप ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसा होता है आपके साथ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एनालाइज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, तो वॉच लिस्ट भी बड़ी हो जाती है, प्लस आई वॉच मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। हम्म। तो मतलब अगर एनालिसिस राइट भी होता है ना, तो बिकॉज ऑफ वॉचिंग अदर थिंग्स,
तो वो एनालिसिस में इफेक्ट करता। तो बिल्कुल फिर मतलब राइट होने के बाद भी लाइक वी गो रॉन्ग, तो उसके वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस पर फर्क पड़ता। ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट्स ना, तो थोड़ा सा आप अपनी वॉच लिस्ट को अच्छे से फिल्टर्ड रखिए। जैसे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द इंडेक्स ट्रेडिंग, अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हैं ना, तो यू शुड हैव निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, डॉलर इंडेक्स, और ये तीन चार चीजें आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। वन कैन बी रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक एज वेल। तो या तो आप टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखो अपने वॉच लिस्ट में, जो दो तीन स्टॉक टॉप हैवी वेट स्टॉक्स है निफ्टी के। उसके अलावा एक आईटी सेक्टर रख सकते हो, और एक फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में, तो निफ्टी बैंक रख लो। ठीक है। तो आप आराम से कोरिलेशन में ट्रेड कर पाओगे। अभी आपने देखा होगा फ्यू डेज से ऐसे चल रहा है मार्केट, वन डे यू आर सीइंग आईटीज आउट परफॉर्मिंग एंड बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग। उसके बाद एक दिन बैंक निफ्टी अंडर आउट परफॉर्म करता है और निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्म करती है। तो इस वजह से मार्केट्स में आप देख रहे होगे इवन आफ्टर ब्रेकिंग द की इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 16,400, अपन नीचे भी आ गए, फिर ऊपर भी चले गए, और फिर वापस नीचे आ गए। दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वी वेंट बिलो दिस रेंज, यहाँ पे नीचे आ गए, फिर नीचे से वापस से बाउंस बैक लिया, तो ब्रेकआउट दे दिया इंडेक्स ने, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने के बाद भी इंडेक्स वापस से अंदर आ गया। दिस इज हैपनिंग बिकॉज आपके जो इंडाइसेस है, निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। आपका निफ्टी बैंक 1% डाउन था, आपका निफ्टी आईटी 0.37% अप था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो दो सेक्टर्स, जो दो लीडिंग सेक्टर्स है निफ्टी के, जब वो एक डायरेक्शन में फेल कर रहे हैं मूव करने में, तो आपका निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा हायर लेवल्स। ठीक है, बिकॉज निफ्टी बैंक ड्रैग कर रहा है मार्केट को, निफ्टी आईटी ऊपर खुलने के बाद नीचे आ जाता है, तो आपका निफ्टी भी साथ में नीचे आ जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दो तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, ये आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए जब आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टॉक्स फिल्टर करके उन पे ट्रेडिंग करना है, तो फिर आपको एक बार सिर्फ इंडेक्स का ट्रेंड देखना चाहिए। ठीक है। लाइक यू आर ट्रेडिंग स्टॉक्स, बस आपको सुबह ये देखना चाहिए कि मार्केट्स आर बुलिश और बियरिश। ठीक है। अगर आप मार्केट्स के ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इंक्रीजेस। ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है and you are betting on the bullish direction on any stock, the probability of your success will increase. अगर मार्केट्स बियरिश है और आप सिर्फ बियरिश स्टॉक्स पकड़ रहे हो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस विल इंक्रीज। तो जब आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, आपका फर्स्ट टास्क होना चाहिए कि मैं जो बेंचमार्क है उसके ट्रेंड को समझूं, और उसके ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड्स को अलाइन कर सकूं अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को। वरना अगर आप सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास ये तीन चार चीजें होनी चाहिए और आपको सिर्फ उनको ट्रैक करना चाहिए। तो जितना कम चीजें रखोगे वॉच लिस्ट में, जितना फोकस्ड रहोगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा चीजें होगी वॉच लिस्ट में, और अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करने जा रहे हो और स्टॉक ट्रेड कर लोगे एकदम से, या फिर स्टॉक ट्रेड करने गए इंडेक्स कर लोगे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स में आपको एक राइट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज आपने देखी होगी। हाँ। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर मुझे इंडेक्स ट्रेडिंग मास्टर करना है, तो मैं इन तीन चार चीजों को, और ये दो तीन स्टॉक्स जो हैवी वेट है, इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा और इनको ट्रैक करूंगा अच्छे से। पोस्ट मार्केट में भी मैं इन सारी चीजों को समझूंगा। अगर आपको इंडेक्स नहीं करना है, तो आप स्टॉक्स को एनालाइज करोगे और पोस्ट मार्केट में बस एक बार निफ्टी के ट्रेंड को समझोगे नेक्स्ट डे के लिए, ताकि आप अगर बेंचमार्क के ट्रेंड के साथ स्टॉक्स के ट्रेंड को अलाइन कर पाओगे, तो आपकी सक्सेस बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी मार्केट से। ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड Yeah. ऑलवेज ट्राई टू कीप योर वॉच लिस्ट शॉर्ट। जितनी लंबी आपकी वॉच लिस्ट होगी ना, उतना मुश्किल आएगी लाइव मार्केट में ट्रेड करने में। यही चीज की वजह से आप लोग करेंसी में बेटर कर पा रहे हो, बिकॉज करेंसी में आपके पास चार चीजें होती है और आपको सिर्फ चार पे फोकस देना होता है। उसमें से भी अगर आपको दो अच्छे नहीं लगते, तो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टू, और इतने टाइम उस पर फोकस करते हो तो आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। स्टॉक्स पे जब आप आते हो, तो आप इतनी सारी चीजें देखने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है कि जब आपका ध्यान इतनी सारी चीजों पे होता है ना, तो यू गेट वेरी कंफ्यूज। एंड राइट नाउ मार्केट्स कैसे चल रहा है, मार्केट्स जस्ट वांट यू टू बी अ कैमेलियन। मार्केट्स एकदम से बुलिश हो जाता है, एकदम से बियरिश हो जाता है। तो इतने सारे स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान दोगे एंड यू आर नॉट एबल टू स्विच द साइड्स क्विकली, तो फिर डेफिनेटली लॉसेस फॉलो करें। फाइन। तो ये चीजों Yes. का आपको ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट में। जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, तो ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि आपको फिल्टर बहुत रहना पड़ेगा अपनी वॉच लिस्ट के साथ, बहुत कम चीजों के साथ जाना होगा।
और ध्यान रखना कि जिन भी चीजों के साथ आप जा रहे हो उनके बारे में आपको अच्छे से पता है, एक बार आपने देख रखी है वो सारी चीजों के चार्ट, आपको पता है कि मेरा जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है या बियरिश है, तो उस साइड ऑफ द ट्रेंड में आप अपनी ट्रेड्स अलाइन कर पा रहे हो। ठीक है, क्या? जो भी आपका ट्रेंड है, जो भी जैसे निफ्टी इज बुलिश, ठीक है, निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है और आपने उसका चार्ट स्टडी कर रखा है, अब अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो ट्राई टू फाइंड आउट दो स्टॉक्स इन निफ्टी जो बुलिश चार्ट्स बना रहे हैं एंड ट्राई टू मेक अ लॉन्ग ट्रेड ऑन दो स्टॉक्स, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, हाँ। रिगार्डिंग ऑप्शंस में आपको एक चीज गाइड करूंगा, बिकॉज यू हैव सेड मी कि आपने ऑप्शंस में काफी लॉसेस किए फ्रीक्वेंटली, और जब भी आपने ब्रेक लिया है तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए मैं आपको एक चीज गाइड करूंगा रिगार्डिंग ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस है या इंडेक्स ऑप्शंस? इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक्स में आई डोंट ट्रेड मच क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द राइट स्ट्राइक प्राइस एंड मूवमेंट भी काफी बार सही से नहीं आता, तो आई अवॉइड दैट। गुड, ठीक है। तो ये बात आपकी अच्छी लगी मुझे कि आप स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस में मैं भी जब किसी को एडवाइस दूंगा तो मैं यही दूंगा कि लॉट ऑफ मिड कैप स्टॉक्स जो एफ एंड ओ में आते हैं, या फिर जो भी मिड कैप के काउंटर्स हैं एफ एंड ओ में, ठीक है, उनमें क्या प्रॉब्लम रहती है, उनमें लिक्विडिटी इशू रहता है, एंड अगर आप उसको कैरी ले जाते हो, मतलब ओवरनाइट ले जाते हो, या फिर उसको सुबह स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करोगे, तो दे हैव वेरी लेस लिक्विडिटी, एंड उस प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार इवन आफ्टर अ गुड ओपनिंग ऑन द स्टॉक या फिर आपके फेवरेबल ओपनिंग में भी आपको लॉस हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो ना, तो यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम द निफ्टी 50 जो लिक्विड है। ठीक है, सिर्फ इन पे ही ट्रेड करो, पहली चीज तो ये। और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड ही नहीं कर रहे, इंडेक्स पे फोकस करते हो, तो ऑन द इंडेक्स फिर तो मैंने आपको बताया आपकी वॉच लिस्ट में तीन चार चीजें क्या होनी चाहिए। यू हैव टू कीप निफ्टी, यू हैव टू कीप निफ्टी बैंक, यू हैव टू कीप निफ्टी आईटी। आप डॉलर इंडेक्स ट्रैक कर सकते हो, निफ्टी और निफ्टी का ओवरनाइट जो डेटा आ रहा है, जो भी आई कीप ऑन सेंडिंग द डेटा, मैं आपको डेटा भी सेंड करता हूँ, ये आप रीड कर सकते हो फॉर दैट। इससे आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग और अच्छी हो जाएगी, बिकॉज इफ यू ट्राई टू अलाइन विद द फ्लोज, आप अगर अपनी ट्रेड्स को फ्लोज के साथ अलाइन करोगे तो आपकी ट्रेड्स और बेटर रिजल्ट्स देगी आपको। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द डेटा, ये वाला डेटा, ठीक है, यू हैव टू हाँ। फोकस ऑन दिस डेटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो। और एक रिलायंस आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट वेटेड स्टॉक इन योर निफ्टी। फाइन, अब मैं ये पूछना चाहूंगा, आप निफ्टी और निफ्टी बैंक में से ज्यादा ट्रेड क्या करते आई यूजुअली गो विद बैंक निफ्टी। हो? ओके, तो निफ्टी बैंक के साथ जाते हो ना, तो निफ्टी बैंक के साथ जाते हो तो आपको कुछ कोरिलेशंस पता होनी चाहिए। जनरली मार्केट में यू विल नॉट सी निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक मूविंग टुगेदर। ठीक है, जब भी ये दो सेक्टर मूविंग टुगेदर होगा, लाइक अगर दोनों नीचे जा रहे हैं तो आपका निफ्टी बहुत नीचे जाएगा, अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो आपका निफ्टी बहुत बुलिश रहेगा उस दिन। एंड यूजुअली दे मूव इन इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन में मूवमेंट होता है, मतलब अगर आपका बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपका निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा, एंड दैट कीप्स योर निफ्टी बैलेंस। ठीक है, ये दो आपके हाईएस्ट वेटेज सेक्टर्स हैं निफ्टी में, दे यूजुअली मूव इन इनवर्स रिलेशन। बट जब ये साथ में मूव करेंगे तो यू विल सी वाइल्ड मूव्स इन योर बेंचमार्क, लाइक अगर दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं तो यू विल सी अ वाइल्ड अप मूव, इफ बोथ आर गोइंग डाउन यू विल सी अ वाइल्ड डाउन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द डाउ थ्योरी प्रिंसिपल, कि अगर आपका निफ्टी बैंक और आपका निफ्टी, ठीक है, दोनों एक ट्रेंड में नहीं चल रहा है तो यू विल सी चॉपी मार्केट्स। ठीक है, if both the indices are not able to relate to each other, you will see choppiness in the market। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे जो इंडाइसेस है उनका रिलेशन बैठना चाहिए मार्केट। ठीक है, Yeah. that is a very important thing. Now let's come on to the other doubts that you have. हाँ, एक चीज, इट वाज अबाउट इक्विटी रिलेटेड ही, जैसे कि देयर आर गुड ब्रेकआउट्स इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप समटाइम, Hmm. बट देन द मार्केट टर्न्स बेरिश, जैसे जो मेजर इंडेक्स होते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। Hmm. तो उस टाइम पे लाइक हाउ शुड वी सेट अ पोजीशन? Like the breakout in the stock is with a very powerful candle, so should we like देखिए, go into that trade or not?
See, actually what happens, the biggest thing that you have to आपको कॉन्कर करनी है मार्केट में, जो बिगेस्ट थिंग है वो यही है कि आपको ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है. इफ योर ट्रेंड इज नॉट रियली बुलिश, मतलब रियली बुलिश का मतलब कि अगर आपका निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रियल में उतना अच्छा नहीं है, अगर वो इतना अच्छा रियल में बुलिश नहीं है, तो यू शुड नॉट गो फॉर स्विंग ट्रेड्स इन द मार्केट. आपको कभी भी स्विंग ट्रेड्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देखिए जैसे ही आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो उनमें यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ कैरिंग शॉर्ट्स. ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपको अगर कोई स्टॉक बुरा लग रहा है तो आप उसमें शॉर्ट्स कैरी करके ले जाओ. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, योर व्यू इज बायस्ड. ठीक है, आपका व्यू बायस्ड है, आप बुलिश हो उस पे, तभी आप उस पर ट्रेड कर सकते हो. अगर आप उस पर बियरिश होगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कैरी दैट पोजीशन. अगर किसी में ब्रेकडाउन आता है तो क्या आप कैरी करके ले जा सकते हो? नहीं. तो दैट इज वाई आप सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप को तभी ट्रेड करते होगे जब मार्केट्स बहुत बुलिश होते होंगे, जब आपको क्लियरली ब्रेकआउट मिल रहा है और आप इजीली रिटर्न्स बना सकते हो. तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू सजेस्ट कि इफ द मार्केट्स आर नॉट रियली बुलिश, आपको कभी भी स्विंग ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स में, बिकॉज दैट विल रियली हिट यू हार्ड. अगर आपका बेंचमार्क 2% गिरेगा तो यू विल रियली सी अ बिग ड्रॉडाउन ऑन दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स. तो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि इस केस में आपको पहले मार्केट का ट्रेंड समझना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद अगर आपको वो सच्ची में काफी बुलिश लगता है, देन यू शुड try taking trades on the small cap and mid cap towards swings. Okay, otherwise you should avoid these trades. Okay. ठीक है, ओके, हाँ. दिस इज वन थिंग. अभी जब हम इंडेक्स ट्रेडिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, whenever we are conducting any index trading session for our mentorship members also, मैं उनको एक चीज बताता हूँ, अगर आप F&O ट्रेडर भी नहीं हो तब भी इंडेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. द रीजन इज कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में भी ट्रेड करना पसंद करते हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है. अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखे बिना या फिर आप अपने बेंचमार्क का ट्रेंड देखे बिना, मार्केट्स का ट्रेंड समझे बिना ट्रेड करते जाओगे तो डेफिनेटली जो भी आपने बुल मार्केट में पैसा बनाया है इन स्विंग ट्रेड्स एंड पोजिशनल ट्रेड्स, ऑल दोस प्रॉफिट्स विल बी गिवन बैक टू द मार्केट जैसी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा. इसीलिए आपको निफ्टी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, बेंचमार्क के बारे में समझना बहुत जरूरी है और डेटा के बारे में समझना बहुत जरूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ऑफ द मार्केट. फाइन. Okay. यस, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट? मतलब आई होप कि ये वाला आपका डाउट क्लियर होगा. अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ट्रेंड कैसे समझना है इन चीजों का, तो भी आप पूछ सकते हो. ओके. एक और ये था कि लाइक व्हेन वी फेस लॉस, तो नेक्स्ट टाइम लाइक हाउ शुड वी ट्रेड, मतलब विद अ फ्रेश माइंडसेट कि हम लोग कैसे आए मार्केट में, और वी शुड जस्ट लाइक फोकस ऑन रिकवरिंग दैट लॉस बिकॉज ओके, दैट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट आई एम फेसिंग, ठीक है, so that hampers my trading a bit. ओके ओके, फाइन. तो मैं आपको गाइड करता हूँ इस पे. देखिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपका जब भी आप मार्केट्स में आते हैं तो आपका फर्स्ट गोल जो होता है, जो आपका प्राइमरी एम होता है, वो ये होना चाहिए कि जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ उसका जो आउटकम है वो या तो बिग प्रॉफिट होना चाहिए या स्मॉल प्रॉफिट होना चाहिए या ब्रेक इवन होना चाहिए या स्मॉल लॉस होना चाहिए. एंड यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट स्मॉल लॉस. अगर वो स्मॉल लॉस में भी चली जाती है ट्रेड तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप ट्रेड लोगे तो उसका आउटकम स्मॉल लॉस भी हो सकता है. एक ट्वीट मैंने किया था कुछ टाइम पहले एंड मैंने उसमें लिखा था कि योर स्टॉप लॉस इज योर स्मॉल लॉस. ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आपका स्मॉल लॉस होता है. आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा वहां प्लेस करना चाहिए जहां पे आपको एक स्मॉल लॉस हो, या फिर आपको हमेशा वही ट्रेड लेनी चाहिए जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल लॉस ही हो. अगर आप ऐसी ट्रेड्स ले रहे हो जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और उस ट्रेड में आपको 1000 पॉइंट की रिस्क लेने पे ही 2000 पॉइंट्स मिल सकते हैं और वो नेट रिस्क आप अफोर्ड नहीं करते, तो देन यू शुड नेवर टेक सच अ ट्रेड. आपका हमेशा माइंडसेट इस चीज पे क्लियर रहना चाहिए कि माय स्टॉप लॉस इज माय स्मॉल लॉस. तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है बिकॉज वही मेरा स्मॉल लॉस है. अगर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो फिर मुझे बिग लॉस हो सकता है, जो कि मुझे नहीं करना है. ठीक है, दूसरी चीज ये बताता हूँ कि आपको स्मॉल लॉस करने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप कोई ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली एवरी ट्रेड विल कम एट सम रिस्क.
ठीक है, बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं मार्केट्स में आऊंगा कुछ पैसा लगाऊंगा तो उस पर हमेशा कुछ रिस्क होगी, और अगर वो स्मॉल रिस्क है तो आई शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई लूजिंग स्ट्रीक होती है आपकी, आप 4-5 या 5-6 ट्रेड लगातार गलत कर देते हो, तो हमेशा ये समझो, हमेशा ये दिमाग में रखो कि 5-6 स्मॉल लॉसेज इज स्टिल नॉट अ बिग थिंग। वो भी 2 ट्रेड में रिकवर हो सकता है। अगर आप वापस से 2 अच्छी ट्रेड कर लोगे तो वो 5 स्मॉल लॉसेज फिर से कवर हो जाएंगे। तो स्टिल यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट थिंग। हमेशा आप एक ड्रॉडाउन की लिमिट बना लो। मार्केट में जब भी जाओ एक ड्रॉडाउन की लिमिट बना लो कि टुडे आई हैव अ लिमिट ऑफ 2000 रुपीज, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप अपने लॉस को लिमिटेड बना लोगे ना, अगर आप अपने माइंड में क्लियर कर लोगे कि मेरी लॉस एपेटाइट पर डे ये है, मार्केट्स विल नेवर बी एबल टू टेक समथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, अगर आपकी लिमिट 2000 है, लेट अस सपोज कि मैं 2000 खो सकता हूँ एक दिन में, और इस महीने में 20 ट्रेडिंग डेज है, और मैं ये मानता हूँ कि मैं 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही कर पाऊंगा, मतलब 20 में से सिर्फ 8 ट्रेड सही कर पाऊंगा। अब लेट अस डिस्कस कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा रहता है। मैं हमेशा 1:2 पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो वो 1:2 की ट्रेड होनी चाहिए। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मैं सिर्फ 40% एक्यूरेसी के साथ इस मंथ में कमा पाऊंगा, तो लॉसेज मुझे जब भी होंगे वो 2000 के होंगे, क्योंकि मैं 2000 की नेट रिस्क मान के चलता हूँ, वो मेरा 1 है। और अगर मैं कमाऊंगा तो मैं 4000 कमा लूंगा। तो लेट अस सपोज कि मैं सिर्फ 40% एक्यूरेसी से कमा पाता हूँ, तो 12 टाइम्स जब मैं लॉस करूंगा 20 दिनों में से, तो आई विल लूज 12 into 2, दैट विल बी 24,000। बाकी क्या 8 दिन अगर मैंने अपना 1:2 वाला टारगेट अचीव कर लिया 40% एक्यूरेसी से भी, तो दैट विल बी 8 into 4, स्टिल मैं प्रॉफिट्स में एंड कर जाऊंगा। लेट अस सपोज कि मैं उनमें से भी 3 ट्रेड पे 1:2 अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उनमें से भी सिर्फ 3 ट्रेड मेरी 1:1 में कट गई हाफ, और बाकी की टीएसएल पे कट गई, तो भी आप देखोगे ना, तो भी मुझे कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल बी एबल टू एंड इन अ स्मॉल लॉस और ब्रेक इवन। तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहां पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा ट्रेडिंग। यू विल फेस अ बिग इशू जब आपके लॉसेस बड़े होंगे आपके प्रॉफिट से। इसीलिए कभी भी ऐसे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड मत करो जहां पे आपका रिस्क 2 रुपए हो और आपका प्रॉफिट ही 1 रुपए हो रहा हो। हमेशा ऐसे ट्रेड करो कि अगर आप 1 रुपए दे रहे हो मार्केट को, तो आप 2 रुपए निकाल पाओ एटलीस्ट। एंड उसमें भी अपनी रिस्क प्रॉपरली मैनेज करो कि अगर मेरा 1:1 हो गया है, जितनी मैंने रिस्क ली थी उतना मुझे मिल गया है, तो मैं अपनी हाफ क्वांटिटी हटा लेता हूँ, बाकी की हाफ को ट्रेल करके इस प्रॉफिट को बड़ा बनाने की सोचता हूँ। फाइन, दैट शुड बी योर रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया ऑन द ट्रेड। अब एक चीज और गाइड करूंगा मैं, तो ये है कि लॉट ऑफ पीपल फेस अ प्रॉब्लम कि यार स्मॉल लॉस हो रहा है, तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार लॉस नहीं होना चाहिए और एक्यूरेसी बहुत हाई रहनी चाहिए। देखिए व्हाट विल हैपन, जब आप आज से 3-4 साल और आगे जाओगे जर्नी में, तो आपको ये रियलाइज होगा कि मार्केट्स डोंट स्टे सेम ऑल ओवर द 5 years। आपके जो कोविड के बाद मार्केट्स थे, क्या वो मार्केट सेम है अभी? नहीं, आपका मार्केट चेंज हो गया है। ठीक है, योर मार्केट ट्रेंड हैज शिफ्टेड। अब वो उस टाइप के बुल रन में नहीं चल रहा है, योर मार्केट ट्रेंड हैज शिफ्टेड। अब मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो योर सिस्टम, आपका जो सिस्टम उस समय था कि मैं जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा हूँ उसको बाय करके ट्रेड करके कमा रहा हूँ, योर सिस्टम शुड बी चेंज। जब आपका ट्रेंड चेंज हुआ तो आपका सिस्टम भी चेंज हो गया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो सिस्टम है उसमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि मेरे को कभी भी स्मॉल लॉस से ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, बिग प्रॉफिट या स्मॉल प्रॉफिट, ये रहना चाहिए। बिग लॉस होगा तो मुझे दिक्कत आएगी, बिकॉज दैट विल एट द एंड ऑफ द मंथ वो मुझे दिक्कत देगा मेरे P&L में। बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं देगी, बिकॉज बाकी सारी चीजें इजीली रिकवरेबल है। अगर कोई स्मॉल लॉस होगा तो वो इजीली रिकवरेबल है। A few days back, I think on the last weekend, I was having a session with the members, and मैंने उनसे एक बात शेयर की थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि बेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने ये आंसर दिया था कि देखिए, जब भी आपको एक स्मॉल इंजरी होगी, लेट अस सपोज आप एक 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, एंड आपको एक स्मॉल इंजरी हो गई, कहीं से आपको हल्का सा लग गई, टच हो गया, तो आपके कहीं लग गई। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, वो 2-3 दिन में सही हो जाएगा। अगर आप कुछ ऑइंटमेंट लगा दोगे उस पर तो वो 2-3 दिन में सही हो जाएगा, आप भूल जाओगे। आपको याद नहीं रहेगा कि 1 महीने पहले क्या आपके साथ हुआ था, कहीं आपकी खरोंच आ गई थी या नहीं आई थी, आपको याद नहीं रहेगा, आप भुला दोगे। सिमिलरली
आर योर स्मॉल लॉसेज इन द मार्केट? आपका कोई स्मॉल लॉस अगर हुआ है ना कभी 500,000 रुपए का, तो आई कैन से कि आप उसे भूल गए होगे। आज आपको याद नहीं होगा कि वो कौन सी ट्रेड पे हुआ था और उसमें कितनी क्वांटिटी कैसे ली थी, आप भूल जाओगे 1,000 1,500 रुपए खो के। बट वेन दिस लॉस विल बिकम 40 to 50,000, तो आपको आज भी डर लगेगा, आप आज भी फियरफुल होगे ट्रेड करने में कि हाँ यार उस दिन जब मैंने ऐसी ट्रेड की थी तो मेरे साथ ये हुआ था। दैट विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। तो ये जो बिग एक्सीडेंट होता है ना, एक होती है स्मॉल इंजरी, दैट इज इक्वल टू योर स्मॉल लॉस। एक होता है बिग एक्सीडेंट। जब भी आप कोई टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो और आपका कोई बिग एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमेशा नेक्स्ट टाइम जब आप टू व्हीलर पे बैठोगे तो आपके दिमाग में बैठती वो चीज आएगी कि लास्ट टाइम जब मैंने स्पीड अप किया था इस व्हीकल को तो मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो वो जो इम्पैक्ट है ना, वो आपकी ट्रेडिंग को फॉरएवर डिस्ट्रॉय करता जाएगा। वो आपको इतना फियरफुल बना देगा मार्केट्स में कि इवन आफ्टर नोइंग कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, आप उसको नहीं ले पाओगे। इसीलिए ट्राई टू अवॉइड दीज बिग लॉसेस। जैसे जैसे आप इन बिग लॉसेस को अवॉइड कर दोगे ना, डेफिनेटली यू विल बिकम, उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे जहां पे आप जाना चाह रहे हो। बस वो बिग लॉस मत करो। ट्राई टू अवॉइड दिस बिग लॉस एज मच एज पॉसिबल। जो बंदा, आई वुड कॉन्फिडेंटली से कि जो बंदा 10 साल तक एक बिग लॉस अवॉइड कर देता है ना ट्रेडिंग में, वो बंदा इस करियर में डेफिनेटली सक्सेसफुल होता ही होता है। बिकॉज अगर आपके बिग लॉस नहीं हो रहा ट्रेडिंग जर्नी में, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल होगे ही होगे अगर आप 10 साल तक ट्रेड कर पा रहे हो। आई होप दैट इज क्लियर। Yes, it's very much clear now. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि सिर्फ एक बिग लॉस को अवॉइड करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं तो नहीं बोलता आपको कि आप स्मॉल प्रॉफिट करो, रोज बिग प्रॉफिट करो, ब्रेक इवन करो। मैं तो सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, बिग लॉस को हटा दो तो ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ऐसा सिस्टम बनाओ ट्रेडिंग का कि बिग लॉस ना हो। अगर वो बिग लॉस हट जाएगा ट्रेडिंग में से, तो अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाओगे आप। ठीक है। और ऐसा हाँ. कोई काम मत करो जिसमें बिग लॉस हो। कभी इतना क्वांटिटी एक्सपोज मत करो जो आपकी लिमिट से ज्यादा हो। कभी कोई ऐसी चीज पे ट्रेड मत करो जो आपकी लिमिट से ज्यादा हो या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। ये सब चीजें आपको बिग लॉस ला के देगी। आई विल ट्राई टू कवर कंटेंट ऑन द इंस्टाग्राम पोस्ट ऑल्सो, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि बिग लॉस को अवॉइड करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो वो 3 4 चीजें आप कभी मत करना ट्रेडिंग में। आपका आधा काम हो जाएगा, आपको कभी भी ट्रेडिंग में बिग लॉस नहीं होगा, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर। फाइन। Okay. ओके, तो दैट शुड बी ए क्लियर थिंग फॉर यू कि मेरे को कभी बिग लॉस नहीं करना। अगर मैं इससे भी एस्केप कर लेता हूँ तो मेरा काम हो गया। मुझे बस बिग लॉस से बचना है। अगर बिग लॉस से बच जाऊंगा तो बच जाऊंगा मैं मार्केट की कोई भी चीज से, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है कि स्लाइटली लार्जर देन स्मॉल लॉस हो जाए मार्केट। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है मार्केट में कि आप कोई ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन लेके गए हो और दैट दैट इज फॉर अ रेंज बाउंड मार्केट, बट आपका मार्केट थोड़ा सा बिग गैप डाउन हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको थोड़ा ड्रॉ डाउन होगा विच इज बिगर देन अ स्मॉल लॉस। ठीक है, या फिर आप कोई बीटीएसटी की पोजीशन कैरी कर गए, नेक्स्ट डे मार्केट 400 कोई नीचे खुल गया, तो ऑन दीज अनसर्टेन डेज यू विल हैव अ स्लाइटली लार्जर देन एक्सपेक्टेड लॉस। इससे कैसे फाइट करना होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ स्मॉल लॉस तक की जगह है, स्लाइटली लार्जर देन स्मॉल लॉस की जगह नहीं थी। बट बिकॉज ये हो गया है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस सिचुएशन में कि अब ये स्लाइटली लार्जर देन स्मॉल लॉस एक ट्रेड में वापस कवर नहीं होगा। बिकॉज जो आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो उसके हिसाब से इस ट्रेड को कवर करने में आपको 2 से 3 ट्रेड आराम से चाहिए। तो प्लीज गिव टाइम टू द मार्केट्स। ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट्स को। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपको आपकी 2,000 की लूजिंग कैपेसिटी और आपने 5 खो दिए, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अब मैं 5 अगली ट्रेड में कमा लूं। बिकॉज उसके लिए आपको उससे ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी जो आप अफोर्ड नहीं करते सेकेंड टाइम लेना। इसीलिए आपको उस ट्रेड को एटलीस्ट 2 से 3 मौके देने चाहिए, अपनी अगली 2 से 3 ट्रेड्स देनी चाहिए कवर करने के लिए। फिर से वापस से आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे और फिर कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड में ही सोचोगे कि मैं इसे पूरा कवर कर लूं, तो देन यू विल ट्रेड आउट ऑफ योर माइंड। आप दिमाग लगा के ट्रेड नहीं करोगे एंड उस केस में वो लॉस बढ़ता जाएगा। दिस इज अनदर रीजन जिससे कैपिटल वाइप आउट होती है मार्केट में। ठीक है, इस चीज हाँ. का ध्यान रखिए। तो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। आप जो प्रॉब्लम फेस करते होगे मार्केट्स में कि कैसे आपको अपने लॉसेस के बाद फाइट बैक करना है, तो आई थिंक दैट शुड बी द आंसर फॉर दैट कि आप कभी भी एक बिग लॉस मत करो। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहेगी।
एक बिग एक्सीडेंट के बाद आपका मेंटल हेल्थ माइंडसेट बिगड़ सकता है, बट एक स्मॉल इंजरी के बाद यू विल बी काम, तो उसको आप ले सकते हो। इवन अगर वो स्मॉल इंजरी 2-3 दिन भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी कवर्ड इन जस्ट अ वन गुड ड्राइव, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज कि अगर कभी कभार बियॉन्ड ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसमें स्लाइटली लार्जर देन स्मॉल लॉस हो जाता है, तो एक्सेप्ट दैट लॉस, move forward and try to cover that loss, not with the next trade but with the next few trades। अब कुछ आगे की 3-4 ट्रेड्स दो, अपने आप कवर हो जाएगा, भागो मत उस लॉस को कवर करने के पीछे। इफ यू ट्राई टू रन कि मैं इसको अगली ट्रेड में कवर करूं, देन डेफिनेटली आपकी कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। Yes. This should be the mindset when you are going in the markets every day, कि मेरे पास ये 4 चीजें, आपको जर्नल में भी ये लिखना चाहिए, आज मैंने स्मॉल लॉस किया, ब्रेक इवन किया, स्मॉल प्रॉफिट किया, बिग प्रॉफिट किया। देखिए बिग प्रॉफिट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे आपके ट्रेडिंग, ऐसा नहीं होगा कि यू आर मेकिंग अ बिग प्रॉफिट एवरी डे, दैट वुड बी सम ट्रेड्स वेयर यू आर मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, वो आपके बहुत सारे जो स्मॉल लॉसेज होगी ना उसको कवर कर लेंगे, वो बहुत सारे स्मॉल लॉसेज ओवर द ईयर को कवर कर सकते हैं कुछ बिग प्रॉफिट्स, बाकी के जो स्मॉल प्रॉफिट्स आप बना रहे हो वो सब आपकी पॉकेट्स में जाते जाएंगे। That is how you have to work in the market. Okay. Yes. इसके अलावा any doubt you have? नहीं, बस इतना ही था। Okay, great. So it was wonderful talking to you today, and I hope कि आज के सेशन से lot of members जो problems face करते हैं regarding कि loss के बाद वापस से market में कैसे come back करना है, और trading psychology, mindset, और stop loss is equal to small loss, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त ये ध्यान रखो कि इलिक्विड ऑप्शंस पे ट्रेड ना करो तो अच्छा है, आप निफ्टी 50 के लिक्विड ऑप्शंस पे ट्रेड करो, दैट विल बी बेटर। उसके अलावा आप कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिसकी नॉलेज ना हो, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बिग लॉस, तो वो बिग लॉस दे सकता है तो उसको अवॉइड कर दो। एंड करेंसी ट्रेडिंग, रिगार्डिंग करेंसी ट्रेडिंग आई वुड लाइक टू से कि सबको सीखना चाहिए। इन द कमिंग 3 to 5 years this will have a really big potential in the Indian markets। अभी उतना टैब स्पेस नहीं है, कम लोग ट्रेड करते हैं इंडिया में, बट डेफिनेटली इन द कमिंग टाइम इसका काफी स्कोप बढ़ेगा इंडिया में, एंड यू शुड कॉन्स्टेंटली लर्न अबाउट द करेंसी मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आप आराम से पैसे कमा सकते हो। ओनली 4 थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन, एंड उसमें से भी अगर आपको जो अच्छा लगता है उसको आप कॉन्स्टेंटली ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी एंड द एक्यूरेसी विल start increasing in the markets। Try to become a multi-asset trader as fast as you can, so that you can diversify your trading interest, and आप अलग-अलग जगह पैसा लगा के you can try to minimize your risk and increase your profits। Fine। So Exactly. thanks for the wonderful session, Shivam। We will come in another session and guide the people। Thank you so much। Definitely. Thank you for the guidance. Okay।